हेलो 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 हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, एक नॉर्मल सा, सीधा सा और बहुत ही आम ट्रेडर, लेकिन आम विद लॉट ऑफ रिटेल एक्सपीरियंस। आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टर पर, जहां हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। हम ये एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई फॉर्मली वेलकम यू ऑल टू मार्केट मसाला दलाल स्ट्रीट, अ वीकली फाइनेंशियल ब्लॉग, आपका नया डेस्टिनेशन फॉर ऑल हॉट न्यूज़ एंड गॉसिप रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, लेकिन थोड़ा हटके। हर हफ्ते हम लेकर आएंगे दलाल स्ट्रीट की सबसे बड़ी और मसालेदार खबरें, मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स, सेक्टर अपडेट्स और कॉर्पोरेट गॉसिप, सब कुछ एक ही जगह, एकदम सिंपल और फन और रिलेटेबल तरीके से। चाहे आप बिगिनर हो या मार्केट के पुराने खिलाड़ी, यहाँ मिलेगा आपको न्यूज़ एनालिसिस और थोड़ा मसाला भी, ताकि आप हर वीक इन्फॉर्म्ड और एंटरटेन्ड दोनों रहो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फाइनेंशियल तड़का। दोस्तों, पहले वी विल गो थ्रू मेजर हेडलाइंस ऑफ ऑल प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस एंड then I will tell you the entire crux in a very simple, funky and relatable story वाले अंदाज में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इंडियन फाइनेंशियल स्पेस में मेजर पब्लिकेशंस की क्या राय है, उन्होंने क्या हेडलाइंस निकाली हैं। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स से। इकोनॉमिक टाइम्स सेज आफ्टर जून 30 रिवर्सल, 10 July 10 shift the trend again. Indian equity markets ended the week on a weaker note as investors opted to book profits at higher levels. Nifty 50 closed below 25,500 mark, registering a weekly loss of 0.69% for the period ended July 4. Money Control says Nifty about 25,450, Sensex up 193 points, IT, oil and gas, realty gain. Bajaj Finance, Infosys, Dr. Reddy's Labs, ICICI Bank, HUL were among major gainers on the Nifty, while losers included Trent, Tata Steel, Eicher Motors, Tech Mahindra and IndusInd Bank. BSE mid-cap and small-cap indices ended marginally higher except auto, telecom, metal. All other sectoral indices ended in the green with bank, pharma, oil and gas, IT, realty, media up 0.4 to 1%. Business Standard says Sensex gain 193 points, Nifty at 25,461, SMIDs flat, IT, pharma, FMCG stocks rise. Following a volatile session, Indian equities benchmark indices settled lower as investors remain cautious on the looming July 9 deadline to impose US President Donald Trump's tariff. Times of India published stock recommendations for July 4, 2025 checklist. Stock market recommendations. Bajaj Broking Research suggests a positive outlook for the Nifty and Bank Nifty, anticipating potential gains. They recommend buying UPL between rupees 670 to 690, targeting rupees 747, and Chennai Petroleum Corporation in the range of rupees 700 to 720, with a target of rupees 787. Reuters says India bars Jane Street from its securities market, citing manipulation of stock market indices. The Hindu Business Line says markets end higher in a highly volatile trade led by bank stocks. Sensex, Nifty share price highlights. Benchmark indices Sensex and Nifty ended higher on Friday in a volatile trade amid buying in bank stocks and a rally in the US stocks. After oscillating between highs and lows in the intraday trade, the 30-share BSE Sensex ended 193 points or 0.23 higher at 83,432. The 50-share NSE Nifty inched higher by 55.7 points or 0.22% to 25,461. From the Sensex firms, Bajaj Finance, Infosys, Hindustan Unilever, ICICI Bank, HCL Tech, Ultratech Cement, Bajaj Finserv, State Bank of India, Tata Consultancy Services, Reliance Industries, Axis Bank and Larsen and Turbo were among the major gainers. However, Trent, Tata Steel, Tata Mahindra, Maruti were among the laggards. India Today says, will Sensex and Nifty hit record highs in July? With domestic flows steady and global risks fading, July could be the moment markets break through resistance. But with key events ahead, will the momentum hold or falter?
तो क्या इस बार होगा अब की बार 26,000 पार? लेट्स सी। CNBC published peaked, paused and poised India's market reboot at halftime. MSCI index has risen just 5.68% so far, nearly 7% points less than the MSCI Asia Pacific Index. Experts have raised concerns over India's ability to withstand competition from regional peers. Experts says that India is a long-term play. IIFL Capital says Indian benchmark index Sensex and Nifty are trading in red on July 4 at 142. Sensex is quoting 83,142, which is trading at 0.1% dip, and the previous close or down by 70 points. Nifty is trading at 25,375, which is a 0.12% dip or down by 29 points. 1,195 shares advances today, whereas 1,405 stocks were down. 21 stocks are in green and 28 stocks are in red in Nifty 50. सेंसेक्स ने फ्राइडे को फिर से किया एक छोटा सा जंप, 83,432 पे क्लोज हुआ और निफ्टी भी 25,461 पे आया। मतलब दोनों ने 0.2% की हल्की सी उड़ान भरी। लेकिन दोस्तों, पूरे वीक का हिसाब देखें तो मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मूड भी दिखाया था, लगभग 0.7% का वीकली लॉस के साथ। इन्वेस्टर्स अभी भी थोड़े कॉशियस हैं क्योंकि इंडिया यूएस ट्रेड डील की क्लैरिटी का इंतजार हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप का 9 जुलाई का जो डेडलाइन है वो नज़दीक आ रहा है, तो मार्केट में हल्का सा टेंशन बना हुआ है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे या नहीं लगेंगे, उसका इंतजार है। सेबी ने एक धमाकेदार मूव और किया। जेन स्ट्रीट, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्वांट ट्रेडिंग फर्म्स में से एक है, उसकी बैंड बजाते हुए बोला चल निकल। उनको मार्केट मैनिपुलेशन के चक्कर में इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया गया। भाई ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। जेन स्ट्रीट का $567 मिलियन का जो प्रॉफिट हुआ था, सेबी ने सीज कर लिया है। अब देखते हैं और क्या हंगामा होता है। मार्केट का मूड, फ्राइडे का सेशन था थोड़ा वॉलेटाइल, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे क्रिकेट का सुपर ओवर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन आईटी स्टॉक्स ने मार्केट को थोड़ा सपोर्ट किया थैंक्स टू पॉजिटिव यूएस जॉब डेटा। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स ने आज की रैली लीड की। वाह क्या बात थी। और हाँ, ट्रेंड की तो आज लिटरली ट्रेंडिंग हो गई, लेकिन गलत रीज़न से। 11.9% का धमाकेदार गिरावट। इन्वेस्टर्स को उनकी ग्रोथ गाइडेंस पसंद नहीं आई थी बस। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव बायस रहा। मिड कैप फ्लैट, स्मॉल कैप 0.03% ऊपर, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका अभी भी पूरा नहीं चल पा रहा है। सेक्टर वॉच, आईटी, फार्मा, ऑयल एंड गैस, रियल्टी एंड बैंक सब ग्रीन में क्लोज हुए। सिर्फ ऑटो और मेटल सेक्टर ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा शाइन किया, लेड बाय भारत पेट्रोलियम, आईजीएल, इंडियन ऑयल, महानगर गैस एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फाइनेंशियल्स की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दिया आफ्टर हिटिंग रिकॉर्ड हाइज लास्ट वीक। करेंसी एंड बॉन्ड्स, रुपी ने भी आज थोड़ा ड्रामा किया, 0.1% गिरकर 85.39 पर डॉलर्स पे क्लोज हुआ। सब ट्रेडर्स अभी भी यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगर डील पॉजिटिव आई तो रुपी की रेजिस्टेंस टूट सकती है। गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ा ऊपर गए यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के इम्पैक्ट से, और ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप रेट्स में भी हल्का सा मूवमेंट दिखा। कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने अनाउंस किया 1:1 बोनस इशू, मतलब एक शेयर के बदले एक और फ्री ले जाओ घर पे आराम से। ये तो दिवाली अर्ली आ गई वीआरएल के शेयर होल्डर्स के लिए। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग ने 523 मिलियन रुपीस के नए ऑर्डर्स जीते भाई, वाह। चेन्नई मेट्रो, ट्रांसमिशन टावर्स और सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। क्लीन एनर्जी स्टॉक्स का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है भाई। ब्रॉडर ट्रेंड्स एंड आउटलुक, मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस के आसपास है और सबकी नज़र है जुलाई 9 डेडलाइन पे। डोमेस्टिक फ्लोज स्ट्रॉन्ग हैं, एफआईज थोड़े कॉशियस हैं, लेकिन ब्लू चिप स्टॉक जैसे रिलायंस और टॉप बैंक्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एनालिस्ट बोल रहे हैं अगर ट्रेड डील सही रही और Q1 अर्निंग्स अच्छी आई तो निफ्टी सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई को फिर से चैलेंज कर सकते हैं, यानी अब की बार 26,000 पार। लेकिन कॉशन की ज़रूरत है क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी हाई है और प्रॉफिट बुकिंग का मूड भी है मार्केट में। तो दोस्तों, ये थी आज की मार्केट की हंगामा भरी कहानी। मार्केट में अभी भी सस्पेंस है, थ्रिल है और थोड़ा सा ड्रामा भी। आप अपनी सीट बेल्ट बांधे रखिए क्योंकि अगले हफ्ते मार्केट में और भी धमाका हो सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे इस इन डेप्थ रिसर्च में जो एफर्ट लगा है वो दिखाई दिया हो तो भाई प्लीज़ माँ कसम सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। माता रानी तुम्हें कृपा करेगी, 108 बार तुम्हें ब्लेस करेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, इन्वेस्ट सेफ और हमेशा मस्ती में रहो भाई। विद दिस साइनिंग ऑफ, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त, एक नॉर्मल सा, सीधा सा और बहुत ही आम ट्रेडर, लेकिन आम विद लॉट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आप मुझे सुन रहे हैं ट्रेड इन्वेस्टर पर, जहाँ हम बातें करते हैं बिल्कुल बेसिक्स टू ब्रिलियंस की। तब तक जय हिंद, जय भारत। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो दोस्तों, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ गेस कर रहे हो? क्योंकि डिफरेंस समझना जरूरी है, इसलिए हम लेकर आए हैं ये मास्टर क्लास सीरीज सिर्फ आपके लिए। वेलकम टू ट्रेड इन्वेस्टर, जहां हम सीखते हैं इन्वेस्टिंग का असली साइंस। इन्वेस्टिंग इज नॉट अ गैम्बल, इट्स अ स्किल, और वो स्किल हम यहाँ बिल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बेसिक्स टू ब्रिलियंस। मार्केट में पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों का बनता है जो गेम को समझ जाते हैं, लेकिन सवाल है कि आप भी तैयार हैं इस गेम को मास्टर करने के लिए? ये मास्टर क्लास सिर्फ नॉलेज नहीं, एक मिशन है इंडिया के हर रिटेल ट्रेडर को एम्पावर करने का, सोच समझ के इन्वेस्ट करने का। हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ एक धांधली का खेल है, जैसे सबके पास कोई सीक्रेट सॉस है और आप बस स्टॉक्स को उनके हाई पे खरीद कर लो पे बेच रहे हो? क्या आपको हर दिन शॉर्ट टिप्स और महंगे कोर्सेज से बॉम्बार्ड किया जा रहा है, जो चांद तारे तोड़ने का वादा तो करते हैं बट मिलता कुछ नहीं? हाय एवरीवन, मैं हूं आपका अपना रिटेलर दोस्त और स्वागत है आपका ट्रेड इन्वेस्टर पर, आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए। हमारा मिशन सिंपल है, आप जैसे हर इंडियन स्टॉक मार्केट रिटेलर को एम्पावर करना और सही राह पर कदम से कदम मिलाकर साथ चलना। हम आपको इतना नॉलेज और कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि आप इस मार्केट को सक्सेसफुली नेविगेट कर सके और फिर कभी भी पेड टिप्स या महंगे कोर्सेज पर डिपेंड न करना पड़े। मैं आपकी सिचुएशन समझता हूँ और सच में समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरा हूँ। मेरी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी 2017 में शुरू हुई थी और विश्वास करिए एक बहुत ही हम्बल बिगिनिंग थी। मैंने भी काफी गलतियां की, उन्हीं ट्रैप्स में फंसा और वही फ्रस्ट्रेशन महसूस की, लेकिन धीरे धीरे लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट से, बहुत सारी बुक्स पढ़ के और घंटों वैल्यूएबल पॉडकास्ट और वीडियोस देखकर मैंने प्रोग्रेस करना शुरू किया। मैंने सीखा कि असली में क्या काम करता है और सबसे जरूरी क्या नहीं करता। ठीक वही चीज हम आपको अचीव करने के लिए यहाँ है, ताकि आप मार्केट के नए सोल्जर नहीं, स्मार्ट सोल्जर बन पाए। ये स्ट्रेटेजी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने की बात है, ना कि बस आंख बंद करके दूसरों को फॉलो करने। अब एक छोटा बट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल पर शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपनी अच्छी रिसर्च जरूर करें या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्मार्ट सोल्जर बनना चाहते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लेना चाहते हैं तो उस लाइक बटन को प्लीज दबाइए। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत है, और डेफिनेटली हमारे चैनल यानी ट्रेड इन्वेस्टर को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट सच में हमें वैल्यूएबल और फ्री कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करेगा।